and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Tool Guru. Let's compete. Today, I will discuss the seventh part related to the fundamental rules. Today, I will discuss two very important rules: Fundamental Rule 52 and Fundamental Rule 53. In this part, also, I will discuss 10 MCQs. FR 52, it is related to the cease of pay and allowance due to the removal, dismissal, or compulsory retirement. FR 53, it is payment during suspension. You know that during suspension time, the charged officer get the subsistence allowance. So details I will discuss. Definitely, the session would be interesting one. You can get many good facts and also very concise manner. Very briefly, I can explain, and also 10 MCQs also I have prepared according to the current question pattern. Definitely you will get interesting questions. So my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get notification for my upcoming videos. You see my WhatsApp number, it is 8327782034, and you can join also my Telegram channel. It is t.me/BAPI2034. You can contact with me, or also you can join my Telegram channel so that you can get notification for my upcoming videos. So now I am going to start the seventh part, okay, related to the fundamental rules. So today I will discuss fundamental rule 52 and 53. Both the rules are very important one. First I will discuss MCQs. You see question number 1. Question number 1, two statements given. Here you see correct statements actually you can detect, right? It is the latest question pattern. Which of the above statements is or are correct one, right? First one, the pay and allowances of a government servant who is dismissed or removed from service cease from the date of such dismissal or removal. आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 52, इसमें क्लियरली मेंशन है कि यदि कंसर्न एम्प्लॉय को के ऊपर मेजर पेनल्टी लगता है, और मेजर पेनल्टी में बेसिकली उसको डिसमिस कर दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, तब क्या होता है ना, जिस डेट में एक्चुअली रिमूवल ऑर्डर और डिसमिसल ऑर्डर एक्चुअली विल इफेक्ट, सो फ्रॉम दैट डेट एक्चुअली उसका जो पे एंड अलाउंसेस बंद हो जाता है. ठीक है, ये फंडामेंटल रूल 52 है. एक्चुअली once it is clearly given, the pay and allowances of a government servant who is dismissed or removed from service cease from the date of such. So जिस डेट में, on which date actually the concerned employee it means will be removed or dismissed from the service, from that date only उसको जो पे एंड अलाउंसेस मिलता था ऑटोमेटिकली वुड बी सीज्ड. सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट, ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन और डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन by an order of the appointing authority shall be entitled a subsistence allowance an amount equal to the leave salary which the government servant would have drawn if he had been on leave on half average pay or on half pay, and in addition dearness allowance if admissible on the basis of such leave salary. सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और डीम्ड मान लिया जाता है कि वो सस्पेंडेड है. आप जानते हो कि सपोज कोई क्रिमिनल केस चलता है और उसको अरेस्ट कर दिया जाता है और वो डिटेन हो जाता है मोर देन 48 आवर्स, तो ऑटोमेटिकली उसको सस्पेंशन माना जाता है. तो जब सस्पेंशन, यही स्टेटमेंट है जो सस्पेंशन पीरियड में बेसिकली उसको जो सबसिस्टेंस अलाउंस मिलता है, आप जानते हो सस्पेंशन टाइम में जो बेसिक पे था, जो चार्ज ऑफिसर उसका जो बेसिक पे था उसका 50% एक्चुअली सबसिस्टेंस अलाउंस फिक्स होता है. ठीक है, सपोज फॉर एग्जांपल बेसिक पे सपोज 84,000 था, तो अभी सबसिस्टेंस अलाउंस हो जाएगा
कितना हो जाएगा 42,000। तो उसके ऊपर डीए मिलेगा, उसके ऊपर डियरनेस अलाउंस मिलेगा, उसके ऊपर एचआरए मिलेगा, ठीक है। तो 50% हो जाता है। यदि कंसर्न एम्प्लॉई इज सस्पेंडेड और उसको सस्पेंशन मान लिया जाता है कुछ कंडीशन में, मेरा क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील वीडियो आप देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है ना, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। सब्सिस्टेंस अलाउंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, सस्पेंशन टाइम में उसका जो बेसिक पे है जो जस्ट बिफोर सस्पेंशन, ओके, उसका जो बेसिक पे था उसका 50% एक्चुअली फिक्स कर दिया जाता है और उसी के ऊपर ही डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस सब फिक्स होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हिच फंडामेंटल रूल a government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled a subsistence allowance। हम जानते हैं कि ये बहुत बार एक क्वेश्चन आया है, कौन सा फंडामेंटल रूल में डिस्कस किया गया है कि यदि गवर्नमेंट सर्वेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है और मान लिया जाता है कि वो सस्पेंडेड है, तो उस केस में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। अभी मैं बताया सब्सिस्टेंस अलाउंस बेसिकली जस्ट बिफोर सस्पेंशन जो उसका बेसिक पे था, ठीक है, वो बेसिक पे का 50% हम सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर लेंगे और उसके ऊपर ही डीए और उसके ऊपर ही एचआरए मिलेगा। अभी मैं बताया था। तो ये जो है FR 53 है, आप याद रखिए। फंडामेंटल रूल 53 क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि इफ द कंसर्न एम्प्लॉय सस्पेंडेड और डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, मान लिया जाता है। आप जानते हो कि ये जो है ना, डीम्ड टू हैव बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन क्या है, यदि वो डिटेन हो जाता है, अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद डिटेन हो जाता है, तो मोर देन 48 आवर्स हो जाएगा उसका जो डिटेंशन, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाता है, उसको ऑटोमेटिकली सस्पेंशन मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उस केस में उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है जस्ट बिफोर सस्पेंशन। आप देखिए, जैसे जस्ट बिफोर सस्पेंशन सपोज उसका बेसिक पे सपोज है 82,200 है, ठीक है। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस जो फिक्स होगा वो हो जाएगा, उसका हाफ कर दीजिए, 41,100 हो जाएगा, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस हो जाएगा और उसी के ऊपर ही डीए एचआरए सब फिक्स होगा, ठीक है। तो उसमें फंडामेंटल रूल 53 एक्चुअली एम्फसाइज किया है सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर, राइट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, where the period of suspension exceeds 3 months, where the period of suspension exceeds 3 months, the authority which made or is deemed to have made the order of suspension shall be competent to vary the amount of subsistence allowance. The amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount not exceeding dash of the subsistence allowance admissible during the period of the first 3 months if in the opinion of the said authority the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing not directly attributable to the government। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, यदि जो सस्पेंशन ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो जाता है, इसमें याद रखिए, इसमें सस्पेंशन ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो जाएगा, तो इस केस में ये मान लिया जाता है कि जब सस्पेंशन ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो जाएगा ऑटोमेटिकली उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी होगा, ठीक है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी कर देगा। तो कैसे वेरी होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस में, यदि ये डिले माना जाता है, मोर देन 3 मंथ्स मींस डिले हो गया, तो डिले हो गया मगर वो कंसर्न जो चार्ज ऑफिसर है उसके वजह से नहीं। लास्ट सेंटेंस देखिए, मैं अंडरलाइन कर दिया, नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द गवर्नमेंट सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से एक्चुअली ये डिले नहीं है। उसका जो सस्पेंशन अभी मोर देन 3 मंथ्स इट मींस एक्सटेंडेड हो गया, ये एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से नहीं है। तो इस केस में उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस वेरी होगा। पहले तो सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना मिल रहा था, 50% मिल रहा था, अभी फिर उसमें ऐड हो जाएगा, जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है उसका 50% ऐड हो जाएगा,
ठीक है, इट मीन्स अभी जो ऐड होगा ये 50% ऑफ, यहां पे ऐसे तो 50% मिल रहा था, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस था 50% ऑफ बेसिक पे, अभी कितना ऐड होगा ना 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। समझ में आया? जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था उसका 50% एक्चुअली इंक्रीज होगा, तो इट मीन्स ओवरऑल उसको कितना मिलेगा ना 75% ऑफ बेसिक पे। ये जो बेसिक पे है जस्ट बिफोर सस्पेंशन। तो समझ में आया कि नहीं? तो इसमें क्या है, यदि ये जो डिले हुआ माने मोर देन 3 मंथ्स, उसका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया बियॉन्ड 3 मंथ्स, तो यदि बियॉन्ड 3 मंथ्स हो जाता है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए माने इट मीन्स आप फास्ट 3 मंथ्स तो वो तो इट मीन्स उसका सस्पेंशन पीरियड चला, अभी 3 मंथ्स फास्ट 3 मंथ्स खत्म हो गया, तो जब सस्पेंशन पीरियड एक्चुअली एक्सीड्स 3 मंथ्स तब क्या होगा ना, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी करेगा, तो वहां पर देखा जाएगा कंडीशन, क्या ये जो डिले हुआ, ये जो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया, क्या ये बेसिकली ड्यू टू द गवर्नमेंट सर्वेंट और इट इज डिलेड ड्यू टू एनी अदर रीजन। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट के वजह से नहीं है तब इस केस में उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो पहले मैं बताया ये तो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जस्ट बिफोर सस्पेंशन उसका जो बेसिक पे था उसका 50% फिक्स हुआ है, तो अभी जैसे ये जो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया और उसमें गवर्नमेंट जो चार्ज ऑफिसर है उसका कोई हाथ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50%, तो इट मीन्स अभी पहले उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस जब सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है तब सब्सिस्टेंस अलाउंस 50% ऑफ बेसिक पे होता है, तो इस केस में अभी कितना हो जाएगा 75% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्लियरली दिया है कि यहां पर देखिए, द अमाउंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस में बी इंक्रीज्ड बाय ए सुइटेबल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस। जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था उसका 50% बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a government servant under suspension or deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority shall be entitled a subsistence allowance. No payment shall be made unless the government servant. इसे तो हम जानते हैं ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड एक्चुअली द चार्ज ऑफिसर गेट द सब्सिस्टेंस अलाउंस, मगर वो भी नहीं मिलेगा। नो पेमेंट शैल बी मेड अनलेस द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या सबमिट करना पड़ेगा एवरी मंथ में, जिसके वजह से उसका सब्सिस्टेंस अलाउंस ओके गवर्नमेंट नहीं रोकेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा कि मैं कहां पर भी काम नहीं कर रहा हूं। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, द कंसर्न चार्ज ऑफिसर सबमिट द फर्निश सर्टिफिकेट and in certificate actually he must declare that कि I cannot engage myself in any other employment. Okay, he is not engaged in any other employment, business, profession और vocation। कोई भी चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे प्रोफेशन हो, चाहे वोकेशन हो, किसी से भी वो कुछ और नहीं कर रहा है, तो उसका एक सर्टिफिकेट वो एवरी मंथ में वो फर्निश करेगा। तो ये याद रखिए। ठीक है, तो सस्पेंशन पीरियड में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, तो जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर मस्ट फर्निश ए सर्टिफिकेट एंड ही मस्ट डिक्लेयर दैट इट मींस आई डू नॉट अर्न एनी मनी थ्रू एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन और वोकेशन और फ्रॉम एनी बिजनेस। ठीक है, एवरी मंथ में उसको सबमिट करना पड़ेगा। और उसमें भी मैं बता देता हूं, सपोज आपको अभी ऐसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दिया था, जस्ट बिफोर सस्पेंशन, जैसे बेसिक पे था, सपोज ये था, फॉर एग्जांपल एक इमेजिनरी एग्जांपल दे देता हूं, सपोज बेसिक पे था 47,600, तो अभी सस्पेंशन पीरियड में जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा वो 50% मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा।
तो हाफ मीन्स कितना है, ठीक है, 23,800, ठीक है, ये सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। इसके ऊपर क्या मिलेगा, इसके ऊपर डीए मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। सपोज लगभग उसको सपोज अभी ये टोटल मैं एक इमेजिनरी में ले रहा हूं, सपोज अभी उसको 47,000 मिल रहा है, 47,000 मिल रहा है, और अभी वो एम्प्लॉयमेंट एक्चुअली कहां पर भी काम कर रहा है। सपोज somewhere else actually he engage himself, सपोज एनी और एनी बिजनेस और एनी प्रोफेशन और वोकेशन से कुछ इनकम कमाता है। सपोज उसका इनकम गवर्नमेंट ने डिटेक्ट किया कि वो 25,000 अदर सोर्सेज से कमाता है, तो उसको कितना सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा, माइनस कर दीजिए 47,000 माइनस 25,000, तो उसको 22,000 मिलेगा, ठीक है, उसको 22,000 मिलेगा बेसिकली सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस डीए, क्योंकि अभी उसको टोटल जो सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस मिलकर 47,000 है, मगर एक्चुअली वो कुछ सोर्स, चाहे बिजनेस हो चाहे प्रोफेशन हो चाहे कोई कहां पर भी काम कर रहा है, वो ऑलरेडी एक एम्प्लॉय है और ऐसे टोटल 25,000 कमा रहा है, तो अभी उसको कितना मिलेगा, 22,000 मिलेगा। वैसे ही और एक ऑप्शन देता हूं, सपोज वो अभी और कहां पर भी एंगेज है, वो अभी बेसिकली वो सर्टिफिकेट फर्निश नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो अभी एम्प्लॉय है, और कहां पर काम कर रहा है कि कोई प्रोफेशन से इनकम अर्न कर रहा है, कोई बिजनेस से इनकम अर्न कर रहा है, और उसका जो इनकम है सपोज 50,000 है, सपोज 50,000 ये ज्यादा है, 47,000 से ज्यादा है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इतना याद रखिए, यदि 47,000 से कम है, जितना डिफरेंस होगा वो मिलेगा उसको। सपोज अभी उसको फॉर एग्जांपल उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस, टोटल सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस डियरनेस अलाउंस उसका 47,000 है, मगर और कहां से वो 47,100 कमा रहा है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, एक्चुअली he engage himself in any some activity or through business or through profession, he earn 47,100, तो अभी उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस डीए कितना मिलता था, 47,000 मिलना चाहिए, मगर उसका इनकम अभी 47,100 है, तो कैसे मिलेगा, ठीक है। और एक ऑप्शन देता हूं, सपोज इसमें उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस प्लस डीए ऐसे मिलकर सपोज उसका 47,000 है, मगर उसका अर्निंग है 30,000। अभी कहां पर एक प्राइवेट में वो काम कर रहा है कि कोई बिजनेस कर रहा है, कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व है, तो उसे वो 30,000 अर्न कर रहा है, तो अभी उसको कितना मिलेगा, 17,000 मिलेगा, इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट होता है। तो आपको याद रखना है कि बेसिकली जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है वो एवरी मंथ में एक सर्टिफिकेट फर्निश करेगा और डिक्लेयर करेगा कि आई डू नॉट अर्न मनी फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और वोकेशन और प्रोफेशन, सो इन दैट वे एक्चुअली ही मस्ट सबमिट ए सर्टिफिकेट, देन ही मस्ट एंटाइटल फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, और उसके ऊपर जो है डीए कि एनी अदर कंपेंसेटरी अलाउंस जो भी है उसको मिलेगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में which of the above statements is or are correct one, अगेन हम करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखेंगे। यहां पर भी 2 स्टेटमेंट्स गिवन, where a penalty, first statement, where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on review under these rules, and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions, the order of his suspension shall be deemed to have continued in force on and from the date of the original order of dismissal, removal or compulsory retirement। ये बढ़िया स्टेटमेंट है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। यहां पर क्या दे दिया, सपोज अभी ऑर्डर, ओरिजिनल ऑर्डर ये है कि कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया, कि रिमूव कर दिया गया, कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर वो अभी अपील किया, ओके, अभी अपीलेट अथॉरिटी के पास चला गया कि उसको रिव्यू किया गया। अपील रिव्यू में वो डिक्लेयर किया गया कि अगेन फर्दर इंक्वायरी होगा, डिक्लेयर किया फर्दर इंक्वायरी होगा, कि सपोज एनी अदर डायरेक्शन में उसको मूव कर दिया गया। इट मींस उसका जो
रिमूवल, डिसमिसल और जो कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर था उसको रिवोक कर दिया गया। ठीक है, जब अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, कि जब रिव्यू अथॉरिटी के पास गया, ये हुआ कि वो डिक्लेयर कर दिए कि अगेन उसका इंक्वायरी होगा। ठीक है, सपोज ऐसे अगेन इंक्वायरी होगा, तो ऐसे होने से क्या है, जिस डेट में उसको ऑर्डर मिला था, डिसमिसल ऑर्डर की, रिमूवल ऑर्डर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर, उसी डेट से फिर मान लिया जाएगा कि वो अभी उसका सस्पेंशन पीरियड फिर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए, ऑलरेडी ऑर्डर निकल गया कि उसको डिसमिस कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया और कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर अपील और रिव्यू से उसको रिमिट कर दिया गया। ये जो ऑर्डर दिया गया था उसको रिमिट कर दिया गया और फिर फर्दर इंक्वायरी के लिए इट मींस डिक्लेयर कर दिया गया कि अगेन फर्दर इंक्वायरी विल बी कंडक्टेड। तो इस केस में जिस डेट में उसका डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर एक्चुअली रिलीज हुआ था, उसी डेट से फिर उसको हम क्या मानेंगे ना, सस्पेंशन पीरियड मानेंगे। ठीक है, तो ये है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसी केस में। एक्चुअली कौन सा डेट से हम उसका सस्पेंशन पीरियड मानेंगे कि ना, जिस डेट में उसको रिमूवल, डिसमिसल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर मिला था, उसी डेट से फिर उसको हम सस्पेंशन पीरियड मानेंगे, क्योंकि फर्दर इंक्वायरी के लिए दे दिया गया। ठीक है, next one, if a government servant has been in receipt of interim relief before the date he was placed under suspension, he will be entitled to the same percentage of the interim relief as salary। ये भी करेक्ट है। देखिए, इंटरिम रिलीफ क्या है, बेसिक पे का एक परसेंटेज एडिशनल अमाउंट के आकार में मिलता है इंटरिम रिलीफ। सपोज फॉर एग्जांपल देता हूं, ये जो सेकेंड वाला है, जो इंटरिम रिलीफ के ऊपर, सपोज अभी इंटरिम रिलीफ जो है, सपोज उसको 10% ऑफ बेसिकली बेसिक पे ये डिक्लेयर हुआ है कब ना, बिफोर सस्पेंशन। ये ही वाज बिफोर द डेट ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, सस्पेंशन के पहले डिक्लेयर हुआ है कि इंटरिम, उसका बेसिक पे का 10% उसको इंटरिम रिलीफ मिलेगा। उसके बाद यदि वो सस्पेंडेड हो जाता है, क्या ये इंटरिम रिलीफ मिलेगा? सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर 100% मिलेगा, यही परसेंटेज मिलेगा। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस बेसिक पे का 50% हो जाएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा उसका 10% मिलेगा इंटरिम रिलीफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मगर यहां पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप देख लीजिए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। मगर हाँ, इंटरिम रिलीफ के ऊपर बता रहा हूं, जिस दिन सपोज इंटरिम रिलीफ मिला उसी दिन उसको सस्पेंड कर दिया गया। Okay, on the date actually interim relief given, on the same date actually the person is suspended, तो वहां पर interim relief नहीं मिलेगा। कि सस्पेंशन होने के बाद interim relief डिक्लेयर होता है, आफ्टर सस्पेंशन। ओके, कि बियॉन्ड सस्पेंशन, कि आप मान लीजिए आफ्टर सस्पेंशन इंटरिम रिलीफ को डिक्लेयर किया गया, वो इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा। मगर यहां पर जो दिया गया, यहां पर एक चीज याद रखिए, यदि बिफोर सस्पेंशन इंटरिम रिलीफ डिक्लेयर हुआ है कि बेसिक पे का 10% उसको इंटरिम रिलीफ मिलेगा, तब सस्पेंशन पीरियड में उसको इंटरिम रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो वही परसेंटेज मिलेगा। जैसे मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में 10% है, वही 10% सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर मिलेगा। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। वही पूछा था, करेक्ट स्टेटमेंट आप बताइए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 and 2। Question number 6. The following deductions should not be made from the subsistence allowance। जब subsistence allowance है, हमारा जो सैलरी से डिडक्शन होता है, क्या डिडक्शन आप जानते हो कि कंपल्सरी डिडक्शन। आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है मगर वो कंपल्सरी डिडक्शन होगा, और कुछ है ऑप्शनल, आपका कॉन्सेंट के हिसाब से डिडक्शन होगा। आप समझ रहे कि नहीं? और कुछ ऐसा भी दिया है कि शुड नॉट बी डिडक्टेड, ये नहीं होना चाहिए, सब्सिस्टेंस अलाउंस ये नहीं होना चाहिए। आगे में हम पूरा डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। तो यहां पर जो ऑप्शन है, द फॉलोइंग डिडक्शन शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस। देखिए, सीजीएचएस कंट्रीब्यूशन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कंट्रीब्यूशन, ये देना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी है। ये बेसिकली डिडक्ट होगा, 100% डिडक्शन। इनकम टैक्स है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक है, ये सब डिडक्शन होगा। जैसे लाइसेंस फी, कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब डिडक्ट होगा।
तो ये कंपल्सरी डिडक्ट होगा। रिफंड ऑफ एडवांसेस टेकन फ्रॉम जीपीएफ, ये कॉन्सेंट वाला है, ये ऑप्शनल है, ये कॉन्सेंट, आप कॉन्सेंट दे रहे हो कि ये डिडक्ट होगा होगा, आप कॉन्सेंट दे रहे हो नहीं ये डिडक्ट नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड वाला कॉन्सेंट वाला है, रिफंड ऑफ एडवांसेस टेकन फ्रॉम, सपोज आप जीपीएफ से, जनरल प्रोविडेंट फंड से आप एडवांस लिया है, उसको रिफंड करोगे, ये कंपल्सरी में नहीं जाएगा, मगर आप कंसेंट दे रहे हो कि ये मेरा डिडक्ट किया जाए, कि आप कंसेंट दे रहे हो ये डिडक्ट नहीं होगा। सब्सक्रिप्शंस टू ए जीपीएफ, ये नहीं होना चाहिए। ये देखिए, सब्सक्रिप्शंस टू ए जीपीएफ, जो जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन है वो शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द सब्सिडेंस अलाउंस, ठीक है। तो इसमें ये ठीक होगा। अमाउंट ड्यू टू ऑन कोर्ट अटैचमेंट्स, ये भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट फॉर विच गवर्नमेंट सर्वेंट इज रेस्पॉन्सिबल, सपोज गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से कुछ मॉनेटरी लॉस है गवर्नमेंट के लिए, मगर जब सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है ये शुड नॉट बी डिडक्टेड, ये भी डिडक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जो लास्ट 3 है ये डिडक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे में हम एक्सप्लेन करेंगे, मगर याद रखिए इसमें 3 चीज है। क्या कंपल्सरी डिडक्शन होगा आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस से, क्या ऑप्शनल होगा आपका कंसेंट के हिसाब से, और ऐसा ये जो लास्ट 3 में बताया 3, 4, 5 कि शुड नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस, ये डिडक्ट नहीं होना चाहिए। एक है जो जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन है, आपका जो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है वो डिडक्ट नहीं होना चाहिए। कोर्ट अटैचमेंट्स में जो फी है वो नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय के वजह से गवर्नमेंट को जो मॉनेटरी लॉस हुआ है ये भी नहीं होना चाहिए। तो ये शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अंडर सस्पेंशन पीरियड आज रिगार्ड्स द रिकवरी ऑफ ओवर पेमेंट्स, सपोज आपको ज्यादा पेमेंट दे दिया गया है, उसको रिकवरी किया जाएगा, इसी रिलेटेड में है। ओवर पेमेंट्स वही है, आपको जितना पेमेंट मिलना चाहिए उससे ज्यादा पेमेंट दे दिया गया, ओके, मोर पेमेंट मेड टू यू दैन रिक्वायर ना, तो उसको उसका रिकवरी रिलेटेड में दिया है, 3 सेंटेंस है, ठीक है। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विल एक्सरसाइज डिस्क्रिशन टू डिसाइड वेदर द रिकवरी शुड बी हेल्ड होली इन अबेयंस। Second one, it should be effected at a rate not exceeding 1/3 of the subsistence allowance, including dearness allowance and other compensatory allowances. It should be effected at a rate not exceeding 1/3 of the subsistence allowance, excluding dearness allowance and other compensatory allowances. तो इसमें जो दिया है आप देखिए, सस्पेंशन पीरियड में यदि जो ओवर पेमेंट है उसको रिकवरी रिलेटेड में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो चाहेगा तो वो उसको पूरा हेल्ड कर देगा कि अभी जो ओवर पेमेंट का अमाउंट है अभी होल अमाउंट को होल्ड कर दिया जाएगा, वो अभी रिकवरी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। वो मना कर देगा कि क्योंकि अभी उसको कम सैलरी मिल रहा है, ठीक है, उससे रिकवरी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में ये हो सकता है यदि वो चाहेगा हाँ रिकवरी होगा, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस का 1/3, ओके, नॉट एक्सीडिंग, ये सेंटेंस है, इट शुड बी इफेक्टेड एट ए रेट नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस, मगर उसमें ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस, हम डियरनेस अलाउंस ये सबको एक्सक्लूड कर देंगे मगर इसमें इंक्लूडिंग दिया है, ये नहीं है, इंक्लूडिंग डियरनेस अलाउंस एंड अदर, ये नहीं है, ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस का माने इट मींस नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द सब्सिस्टेंस अलाउंस, जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है उसका 1/3 से ज्यादा रिकवरी नहीं किया जाएगा, मगर उसमें डियरनेस अलाउंस और कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, ये जो अलाउंस है वो सब एक्सक्लूड होगा, ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस से। तो आपको याद रखना है यदि कुछ ओवर पेमेंट रिलेटेड मैटर है सस्पेंशन पीरियड में, तो वो एक्चुअली द competent authority has a discretionary power to it means held whole amount in abeyance दिया है ना, माने it means वो बोलेगा नहीं अभी कोई भी होल अमाउंट को रिकवरी नहीं किया जाएगा, और बाकी यदि रिकवरी किया जाएगा वो ये डिसाइड करेगा कि ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस का नॉट एक्सीडिंग 1/3, ठीक है, ओनली सब्सिस्टेंस, वहां पर डियरनेस अलाउंस की कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जो मिल रहा है उसको एक्सक्लूड कर दो, ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस का नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द
सब्सिस्टेंस अलाउंस, वही रिकवरी हो सकता है। ठीक है, तो माने इट मींस आइदर, तो यहां पर जो ऑप्शन होगा आइदर 1 और 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ओवर पेमेंट रिलेटेड, आइदर 1 और 3। होल अमाउंट को वो होल्ड कर देगा, होल अमाउंट आपसे रिकवरी नहीं किया जाएगा, नहीं तो रिकवरी किया जाएगा तो और क्या है ना, नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ ओनली सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, द लाइसेंस फी फ्री कंसेशन विल सीज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, ये करेक्ट है। एक्चुअली जिस डेट से एक्चुअली सस्पेंशन इफेक्ट हो रहा है उसी डेट से जो लाइसेंस फी फ्री कंसेशन वो फैसिलिटी बंद हो जाएगा। ठीक है, आप एक लाइसेंस फ्री जो आप लाइसेंस फी दे रहे हो वो लाइसेंस फी एक्चुअली एक नॉमिनल रेट में आप दे रहे हो, मगर वो बंद हो जाएगा जिस डेट से आपका सस्पेंशन पीरियड इफेक्ट होगा। ये करेक्ट है। सेकेंड वन, रीजंस फॉर सस्पेंशन इफ नॉट इंडिकेटेड इन द सस्पेंशन ऑर्डर इटसेल्फ शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 months, ये भी करेक्ट है। यदि आपका सस्पेंशन ऑर्डर में रीजन ऑफ सस्पेंशन नहीं दिया गया है, ठीक है, आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिला मगर उसमें कौन सा रीजन के वजह से, फॉर व्हाट रीजन एक्चुअली यू हैव गिवन ऑर्डर फॉर सस्पेंशन, वो मेंशन नहीं हुआ है, तो जिस डेट में आपको ऑर्डर सस्पेंशन ऑर्डर दिया गया उसका 3 months के अंदर आपको रीजन दे दिया जाएगा कि किस रीजन के वजह से आपको सस्पेंड किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, 3 months याद रखिए। रीजंस फॉर सस्पेंशन इफ नॉट इंडिकेटेड, देखिए रीजंस फॉर सस्पेंशन इफ नॉट इंडिकेटेड इन द सस्पेंशन ऑर्डर इटसेल्फ शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 months। ये तो 3 months कैसे काउंट करेंगे ना, जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिला उसी से हम देखेंगे कि 3 months के अंदर यदि सस्पेंशन ऑर्डर में मेंशन नहीं किया गया है किस रीजन की वजह से आपको सस्पेंड किया गया, तो जिस डेट में आपको ऑर्डर मिलेगा उसका 3 months के अंदर आपको रीजन दे दिया जाएगा कि इसी रीजन की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया। सेकेंड वन भी करेक्ट वन है। इफ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड subsequent to the meeting of the DPC but before he is actually promoted, then the recommendation should be deemed to have been placed in the sealed cover। देखिए, अभी आप सस्पेंशन, अभी ऑलरेडी आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है और उसी के अंदर आपका ये ऑलरेडी सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, उसी में अभी डीपीसी आ गया, तो डीपीसी में आपका नाम के ऊपर विचार किया जाएगा मगर जो भी डिसीजन होगा वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एक्चुअली जो भी सील्ड कवर में डिसीजन हुआ है वो डिक्लेयर किया जाएगा। मगर अभी क्या है, आप मान लीजिए ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड सपोज आपका नाम को सुपारिश किया जा रहा है प्रमोशन के लिए, उसको रोका नहीं जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड आपका सपोज प्रमोशन के लिए आपका नाम सुपारिश किया जाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो भी डिसीजन होगा वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा। ओके, द डिसीजन should be kept in the sealed cover and after completion of the disciplinary proceeding actually it will be declared what decision actually it was taken at that time, it will be declared after completion of the disciplinary proceeding। but now आपको remember करना है कि during suspension period related to your promotion matter DPC consider your case, but what decision actually taken by DPC it must be sealed in the it means closed cover। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन डी नॉन, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, where no charge sheet is issued, where no charge sheet is issued, the total period under suspension or deemed suspension including any extended period, the total period under suspension or deemed suspension including any extended period shall not exceed dash from the order of suspension if the government servant is placed under suspension in terms of disciplinary proceedings against him is contemplated or is pending। इसमें ऑप्शन है 270 days, 1 year, 2 years, 180 days। आपको याद रखना है कि आपको चार्जशीट इशू नहीं हुआ है और आप सस्पेंशन इट मीन्स सस्पेंड हो गए और उसके बाद आपका पीरियड को एक्सटेंड किया गया, तो बेसिकली आपके ऊपर क्या है, जो कंडीशन है
कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कॉन्टेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, चाहे डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, चल रहा है, और कॉन्टेम्पलेटेड कि अभी डिसाइड किया जा रहा है कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगा 100%। कॉन्टेम्पलेटेड मीन्स ऑलरेडी प्राइमा फेसी एविडेंस है, एविडेंस इज देयर, so very shortly actually disciplinary proceeding will be initiated against the charged officer। तो ऐसा कंडीशन में चार्जशीट इश्यू नहीं होगा तो ये जो सस्पेंशन पीरियड और जो एक्सटेंशन ये सब मिलाकर ये कितना दिन तक होगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 270 डेज याद रखिए, ठीक है। कोई नो चार्ज, यदि चार्जशीट इश्यू नहीं हो रहा है तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड और एक्सटेंशन ये सब मिलाकर 270 डेज होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ये क्लियरली दे दिया। शैल नॉट एक्सीड इंक्लूडिंग एनी सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंशन पीरियड सब ले जाइए, ओके। शैल नॉट एक्सीड 270 डेज, मगर कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में, इसी कंडीशन में जैसे अभी इट मींस प्राइमा फेसी एविडेंस है आपके अगेंस्ट में, तो अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा कि और पेंडिंग है, अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो इस केस में यदि आपको चार्जशीट इशू नहीं हुआ है तो मैक्सिमम वो 270 डेज तक जाएगा ऑटोमेटिकली, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। इट मीन्स 270 डेज के बाद ऑटोमेटिकली क्या है, आप एक्सोनरेटेड एक्चुअली फ्रॉम द इट मीन्स चार्ज, आपको मुक्त कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर आगे में हम डिस्कस करेंगे, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 ये लास्ट एमसीक्यू है, उसके बाद हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। इफ द रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन व्हेन द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हैज बिकम ड्यू टू बी रिटन और रिव्यूड, ठीक है। यदि जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर, अभी वो सस्पेंशन पीरियड उनका चल रहा है और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अभी ड्यू है, तो इसी रिलेटेड में दो सेंटेंस दिया है। इट मे बी गॉट रिटन और रिव्यूड बाय द ऑफिसर कंसर्न विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हैविंग बीन प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, ये करेक्ट है। जैसे अभी बेसिकली जो रिपोर्टिंग ऑफिसर उसको रिपोर्ट देना है कि रिव्यूइंग ऑफिसर जो अपार होता है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट होता है ना, इसको एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट कहा जाता है। ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बाद रिव्यूइंग अथॉरिटी, सपोज इनका सस्पेंशन होता है तो अभी वो चल रहा है रिव्यू कि रिपोर्टिंग और रिव्यू चल रहा है, और उसी समय एक्चुअली रिपोर्टिंग ऑफिसर हो कि रिव्यूइंग ऑफिसर हो उसका सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन पीरियड चल रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उनको 2 months के अंदर, जो ऑप्शन है जिस डेट में उनको सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उसका 2 months के अंदर वो रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग को खत्म करेंगे, ठीक है। और करेक्ट है। सेकेंड वन क्या है, विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑन विच द रिपोर्ट वॉज ड्यू। यदि रिपोर्ट ड्यू है, ऑलरेडी एक टाइम लिमिट होता है कि इसी टाइम के अंदर रिपोर्ट और रिव्यू हो जाना चाहिए, तो यदि ड्यू है ऑलरेडी इसी डेट के अंदर खत्म करना है मगर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, सपोज डेडलाइन दिया था September 15, इसी के अंदर उसको रिपोर्ट करना है कि रिव्यू करना है, ठीक है, ये ड्यू है, तो इसी केस में सपोज जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है कि रिव्यूइंग ऑफिसर है वो सस्पेंडेड हो गए, तो उस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में उनको सस्पेंशन ऑर्डर उनका इफेक्ट हो रहा है उसका 1 month के अंदर वो उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए, यहां पर जो एक्शन होगा आइदर 1 or 2 विच एवर इज लेटर, इसमें 1 और 2 जो बाद में होगा, आप देख लीजिए ये पूरा क्लियरली मेंशन है, पॉइंट्स को देखिए, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन व्हेन द कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हैज बिकम ड्यू टू बी रिटन और रिव्यूड, इसमें आइदर 1 और 2, यदि रिव्यू चल रहा है कि रिपोर्टिंग चल रहा है, उसका जो स्टिपुलेट डेट है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जिस डेट में एक्चुअली सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट होगा उसका 2 months के अंदर वो रिपोर्टिंग और रिव्यू का रिपोर्ट देंगे, ठीक है। यदि ड्यू है, मैंने ऑटोमेटिकली आपको बताया ड्यू में रिपोर्ट वाज ड्यू, ऑलरेडी वो जो लास्ट डेट था वो खत्म हो चुका है, जो रिपोर्टिंग डेट की रिव्यूइंग डेट का जो लास्ट डेट था वो खत्म हो चुका है, तो और उस समय क्या है ना, जो आइदर रिपोर्टिंग ऑफिसर रिव्यूइंग ऑफिसर का सस्पेंड कर दिया जाता है और उनका सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में
उनका सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट होगा, उसका 1 मंथ के अंदर वो बोलेंगे कि ये रिपोर्ट को आप खत्म कर दो। ठीक है, तो आइदर 1 और 2 व्हिच एवर इज लेटर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा ब्रीफली अभी डिस्कस करेंगे, आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो चलो, ये जो FR52 है ये है सीज ऑफ पे एंड अलाउंस, FR53 पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। फर्स्ट FR52 को डिस्कस करेंगे। आप देखिए फंडामेंटल रूल 52 सीज ऑफ पे एंड अलाउंस क्या है। सपोज डिसमिसल ऑर्डर, रिमूवल ऑर्डर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर जिस डेट में इफेक्ट हो जाएगा उसी डेट से आपका पे एंड अलाउंसेस को बंद कर दिया जाएगा। सपोज जैसे फॉर एग्जांपल आज दिसंबर 26 है 2024, इसी डेट से इफेक्ट हो गया डिसमिसल ऑर्डर, रिमूवल ऑर्डर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर, आज डेट से इफेक्ट हो गया, मींस आज डेट से आपका पे एंड अलाउंसेस बंद हो गया। ठीक है, यही इसको ही डिफाइन किया है फंडामेंटल रूल 52। समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को याद रखिए, रूल रिलेटेड में क्वेश्चन आ रहा है। चलो 50 अभी सस्पेंशन रिलेटेड डाटा देखेंगे। आप देखा होगा कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स 1965 जो रूल 10 है, रूल 10 एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड के ऊपर डिफाइन किया है। तो अभी देखेंगे पेमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो पेमेंट में फर्स्ट वन देखिए, ये रूल को याद रखिए, रूल 53 उसका जो सेक्शन 1 उसका अंडर सेक्शन II और उसका फर्स्ट बिट, इसमें क्लियरली मेंशन है कि सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। मैं आपको बताया था कि जस्ट बिफोर सस्पेंशन आपका जो बेसिक पे था उसका 50% ही फिक्स होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस। सपोज आपका, मैं अभी बताया था और एक बार, सपोज आपका बेसिक पे जस्ट बिफोर सस्पेंशन 47,600 है, तो आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस इसका 50% मिलेगा, इसका 50% मिलेगा। जैसे 23,800 आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस होगा और उसी के ऊपर क्या होगा ना, DA मिलेगा और उसके ऊपर HRA, उसके ऊपर कॉम्पेंसेटरी अलाउंस जो भी है इसी के ऊपर ही मिलेगा। तो यही एक्चुअली डिक्लेयर किया है जो फंडामेंटल रूल 53 जो सेक्शन 1II इसको याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी ये रूल रिलेटेड क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, क्लियर? अथा यदि यहां पर एक ऑप्शन दे दिया ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो गया, ठीक है, दो ऑप्शंस यहां पर देखेंगे। यदि आपका सस्पेंशन पीरियड ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो गया तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी करेगा। तो दो कंडीशन है, यदि एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड इज एक्सटेंडेड एंड इट मींस देयर इज नो हैंड एक्चुअली ऑफ चार्ज ऑफिसर, इसमें चार्ज ऑफिसर का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, यदि अभी जो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया उसमें एक्चुअली जो चार्ज ऑफिसर है उसका कोई लेना देना नहीं है, तो उस केस में क्या होगा ना, आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। कितना दिन के लिए ना, अगेन फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। अभी 3 मंथ में अभी बताया ना, ग्रेटर देन 3 मंथ्स हो गया आपका सस्पेंशन पीरियड, तो आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस क्या होगा, वेरी होगा। और फर्स्ट ऑप्शन है कि जो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया, सो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्चुअली चार्ज ऑफिसर, इसमें चार्ज ऑफिसर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो इसी केस में आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है प्लस 50% ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। इट मींस सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% बढ़ जाएगा, जितना सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा था प्लस फिर सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% बढ़ा दिया जाएगा। तो इट मींस जैसे कि एग्जांपल 75% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा, क्योंकि सस्पेंशन के पहले इसको मैं एनसर्कल कर दिया, क्योंकि बिफोर सस्पेंशन आपका जो बेसिक पे था उसका 50% एक्चुअली सब्सिस्टेंस अलाउंस फिक्स होता है। तो बियॉन्ड 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के बाद आपका जो सस्पेंशन पीरियड जब 3 मंथ्स खत्म हो गया तब आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी होगा, मगर उसमें एक कंडीशन देखा जाएगा। क्या ये जो
सस्पेंशन पीरियड एक्सटेंड किया गया, क्या इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है चार्ज ऑफिसर का? तो इसमें डिक्लेयर किया गया कि नहीं, चार्ज ऑफिसर के वजह से एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड नहीं किया गया। तो इस केस में क्या होगा ना, आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% इंक्रीज कर दिया जाएगा। इट मींस जो सस्पेंशन के पहले बस बिफोर सस्पेंशन आपका जो बेसिक पे था 50% मिल रहा था, अभी वही बेसिक पे का 75% मिलेगा। ठीक है, और बाकी और एक कंडीशन है, रिड्यूस होगा, इसमें रिडक्शन हो जाएगा। वहां पर रिडक्शन क्या होगा, जैसे यहां पर डिक्लेयर किया गया कि अभी जो सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया क्योंकि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चार्ज ऑफिसर के वजह से एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड बियॉन्ड 3 मंथ्स चला गया। तो इस केस में क्या होगा, आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% माइनस कर दिया जाएगा। तो इट मींस आपका जो सस्पेंशन के बिफोर जो आपका बेसिक पे था उसका 25% अभी आपको मिलेगा, क्योंकि है ना सब्सिस्टेंस अलाउंस 50% था नहीं। और बाकी अभी क्या है ना, बेसिकली चार्ज ऑफिसर के वजह से ही अभी सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया। तो इसी केस में सब्सिस्टेंस अलाउंस का 50% रिड्यूस कर दिया जाएगा। तो इट मींस बिफोर सस्पेंशन जो बेसिक पे था उसका कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो होगा ना, आपको याद रखना है, ये जो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको याद रखना है, ये फर्स्ट वन आपको याद रखना है बियॉन्ड 3 मंथ्स, और ये बियॉन्ड 3 मंथ्स के बाद फास्ट 3 मंथ्स के लिए ऐसे मिलेगा, फास्ट 3 मंथ्स के लिए ऐसे मिलेगा। ठीक है, 3 मंथ्स सस्पेंशन पीरियड बेसिकली फर्स्ट 3 मंथ्स के बाद रिव्यू होता है ना, 3 मंथ्स के अंदर रिव्यू हो जाएगा। तो यदि जो रिव्यू कमिटी है वो आपका सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, तो बियॉन्ड 3 मंथ्स एक्चुअली सब्सिस्टेंस अलाउंस में वेरी होगा। तो ये जो वेरी होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस जो वेरी होगा फास्ट 3 मंथ्स, ओके, फास्ट 3 मंथ्स के लिए आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन ये दिया है द रेट ऑफ, अच्छा यहां पर और एक में बताया कि जो डियरनेस अलाउंस आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर ही डियरनेस अलाउंस मिलेगा। जो डियरनेस अलाउंस का परसेंट किसके ऊपर मिलेगा, सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर ही मिलेगा। ठीक है, एचआरए डियरनेस अलाउंस ये सब सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर मिलेगा। तो ये डिफाइन किया है, देखिए थर्ड जो सेक्शन है। और इसमें 53(1) आप देख लीजिए, 53 सेक्शन 1 का डबल आई आप देखिए और उसका सेकेंड बिट देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है यदि कोई आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा था तो एज यूजुअल वो मिलेगा। ठीक है, यहाँ एनी अदर कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस एडमिसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ पे ऑफ व्हिच द गवर्नमेंट सर्वेंट वाज इन रिसीप्ट ऑफ द डेट ऑफ सस्पेंशन सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट। तो यदि आपको कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिल रहा था अभी, वो कॉम्पेंसेटरी अलाउंस सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर मिलेगा। ठीक है, ये बोल रहा है 53(1)(ii)(b), इसको याद रखिए, रूल को याद रखिए, एज यूजुअल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस आपको मिलेगा सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं एमसीक्यू में। फंडामेंटल रूल 53 सेकेंड सेक्शन क्या बोल रहा है कि आपको एवरी मंथ में सब्सिस्टेंस अलाउंस लेने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट फर्निश करना पड़ेगा कि द चार्ज ऑफिसर मस्ट फर्निश अ सर्टिफिकेट, and in certificate actually he must declare that actually I do not earn money from any employment or any vocation or any profession। ठीक है, मैं कुछ मनी अर्न नहीं कर रहा हूं, चाहे कहां पर कोई एम्प्लॉय होकर कि कोई बिजनेस से, कोई प्रोफेशन से मैं कुछ मनी अर्न नहीं कर रहा हूं। तो इन एवरी मंथ एक्चुअली ही मस्ट फर्निश ए सर्टिफिकेट रिलेटेड टू दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल को याद रखिए, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आ सकता है। तो फंडामेंटल रूल 53 उसका जो सेक्शन 2 को आप देख लीजिए। ठीक है, तो उसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि मैं मेरा कोई एनी अदर सोर्स से मैं इनकम अर्न नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट डीम्ड सस्पेंशन एंड लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसके ऊपर थोड़ा देख लेंगे कि जैसे where a penalty of dismissal, removal or compulsory retirement from service imposed upon a government servant under suspension is set aside in appeal or on review।
इसको सेट असाइड कर दिया गया। एक्चुअली अभी ओरिजिनल ऑर्डर में सपोज कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया और उसको रिमूव कर दिया गया और उसको कंपल्सरीली रिटायर्ड कर दिया गया, मगर वो अपील कर दिया, वो भी अपेलेट अथॉरिटी के पास चला गया कि रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास चला गया, और अपेलेट अथॉरिटी रिव्यूइंग अथॉरिटी वो क्या किए, उसको सेट असाइड कर दिए और ये डिक्लेयर कर दिया कि फर्दर इंक्वायरी होगा। ठीक है, तो जब ये डिक्लेयर होगा तो मैं बताया कि जो ओरिजिनल ऑर्डर मिला था डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का ऑर्डर जो मिला था, फिर उसी डेट से फिर सस्पेंशन पीरियड हम उसको मान लेंगे। समझ रहे कि नहीं? तो यदि अपेलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी जो डिसमिसल ऑर्डर, रिमूवल ऑर्डर और कंपल्सरी रिटायरमेंट ऑर्डर को सेट असाइड कर देता है, तब क्या होता है ना, जिस डेट में आपको वो ऑर्डर मिला था उसी डेट से फिर सस्पेंशन पीरियड हम उसको मान लेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में क्या होगा ना, आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, क्योंकि जिस डेट में आपको ऑर्डर दे दिया गया कि आपको रिमूव कर दिया गया, कि आपको डिसमिस कर दिया गया, ठीक है, मगर उसके बाद पता चला कि जो अपेलेट अथॉरिटी की रिव्यूइंग अथॉरिटी डिक्लेयर कर दिया नहीं, उसको सेट असाइड कर दो और एक बार फर्दर इंक्वायरी होगा, तो जिस डेट में आपको ऑर्डर मिला था उसी डेट से फिर उसको सस्पेंशन पीरियड मानेंगे, तो उसमें आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस आप एंटाइटल हो, तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में वो मिलेगा। ठीक है, आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मिलेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज फॉर एग्जांपल मैं देता हूं, नवंबर 1, आपको नवंबर 1 2024 में ऑर्डर मिला कि आप रिमूव हो गए सर्विस से, तो आप अपील किया। ठीक है, आप अपील किया कि आपका केस रिव्यूइंग अथॉरिटी के पास गया, कि अपेलेट अथॉरिटी के पास गया, वो उसको सेट असाइड कर दिए, और ये जो डिक्लेयर हुआ बेसिकली सपोज दिसंबर 31 2024 इसी डेट में डिक्लेयर हुआ कि उसका सेट असाइड कर दिया गया, रिमूवल डिसमिसल ऑर्डर को बेसिकली सेट असाइड कर दिया गया, फर्दर इंक्वायरी होगा। तो फिर इसी डेट से नवंबर 1 2024 में आपको ओरिजिनल ऑर्डर मिला था डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट का, तो उसी डेट से फिर उसको सस्पेंशन पीरियड माना जाएगा, तो माना जाएगा मींस आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा, तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में मिलेगा। ठीक है, ये तो यहां पर वही है, लिमिटेशन नहीं रहता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में, फिर नवंबर 1 से आपको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा। ठीक है, वही क्लियरली मेंशन किया गया है। क्लियर? बाकी इंटरिम रिलीफ को चलेंगे। इंटरिम रिलीफ में बताया था, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, इंटरिम रिलीफ सपोज फॉर एग्जांपल इंटरिम रिलीफ है 5% ऑफ बेसिक पे, एंड ये डिक्लेयर हुआ था बिफोर सस्पेंशन, फर्स्ट वन, इंटरिम रिलीफ बिफोर द डेट ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, इट मीन सस्पेंशन के पहले ऑलरेडी इंटरिम रिलीफ मिल रहा था चार्ज ऑफिसर को, तो अभी जैसे सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, क्या उसको इंटरिम रिलीफ मिलेगा बेसिकली सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर 5% मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर जो इंटरिम रिलीफ है ना, वो ऑटोमेटिकली बिफोर सस्पेंशन ऑलरेडी इट वाज डिक्लेयर्ड। ठीक है, तो ये परसेंटेज चेंज नहीं होगा, तो सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर 5% मिलेगा। और आपको याद रखा होगा कि इंटरिम रिलीफ ये जो डीए, एचआरए, सीसीए ये सब इंक्लूड नहीं होता है, ओनली बेसिक पे के ऊपर, ठीक है, मिलता है, तो वैसा ही सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर ही ये 5% मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वन, सपोज यहां पर जो सेकेंड स्टेटमेंट है, इंटरिम रिलीफ विल नॉट बी एडमिसिबल, उसके ऊपर मैं समझाता हूं, जिस डेट में इंटरिम रिलीफ डिक्लेयर किया गया उसी डेट में आपको सस्पेंशन कर दिया गया, तो उसमें आपको इंटरिम रिलीफ नहीं मिलेगा। जिस डेट में इंटरिम रिलीफ को रिलीज किया उसी डेट में आपका सस्पेंशन हो गया, कि आप बियॉन्ड सस्पेंशन, आफ्टर सस्पेंशन आपको इंटरिम रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, तो उस केस में इंटरिम रिलीफ आप नहीं मिलेगा। इंटरिम रिलीफ इज नॉट एडमिसिबल आफ्टर इट मींस आफ्टर सस्पेंशन, but during suspension period if any interim relief actually suppose released by the government, actually it is not admissible, कि on the date of suspension if interim relief actually released by the government, also it is not admissible. only यदि interim relief आपको मिल रहा था before suspension, तो अभी सस्पेंशन पीरियड में जितना इंटरिम रिलीफ मिल रहा था वो इंटरिम रिलीफ का परसेंटेज अभी
सब्सिस्टेंस अलाउंस के ऊपर मिलेगा। ठीक है, बाकी रिकवरीज हम देखेंगे। देखिए आपका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है ये कंपल्सरी डिडक्शन, कंपल्सरी डिडक्ट होगा। सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या है, इनकम टैक्स डिडक्ट होगा, जो लाइसेंस फी है वो डिडक्ट होगा, और अलाइड चार्जेस मीन सब जैसे इलेक्ट्रिक की वाटर बिल ये दे रहे हो आपको देना पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, ओके, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, आप गवर्नमेंट से लोन लिया है और एक इंस्टॉलमेंट है वो भी जाएगा। ठीक है, आप गवर्नमेंट से लोन लिया है और उसका इंस्टॉलमेंट फिक्स हुआ है, जो अमाउंट फिक्स हुआ है वो डिडक्ट होगा। तो रीपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टेकन फ्रॉम गवर्नमेंट, रेट ऑफ रिकवरी टू बी डिटरमाइंड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, तो रेट ऑफ रिकवरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डिक्लेयर करेगा। सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में आपका जो कंट्रीब्यूशन है मंथली कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन है उसको देना पड़ेगा। ये सब कंपल्सरी है, ये सब डिडक्ट होगा ही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए। और ऑप्शनल में क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका कंसेंट, यदि आप कंसेंट दे रहे हो कि ये डिडक्ट होगा होगा, यदि आप कंसेंट दे रहे हो कि नहीं ये डिडक्ट नहीं होगा नहीं होगा। क्या है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके लिए आपको ऑप्शन दे दो, आप दोगे कि नहीं, ये डिडक्ट होगा कि नहीं। अमाउंट्स ड्यू टू कोऑपरेटिव स्टोर्स और सोसाइटीज, रिफंड ऑफ जीपीएफ एडवांस, आपको जीपीएफ जो जनरल प्रोविडेंट फंड से आप एडवांस लिया है उसका रिफंड, तो ये कंसेंट, ये कंसेंट वाला, ये ऑप्शनल है। आप कंसेंट दे दो, ये सब डिडक्ट नहीं होगा नहीं होगा, आप कंसेंट दो डिडक्ट होगा होगा। बाकी डिडक्शन नॉट टू बी मेड, ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि यदि जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है उसको सब्सिस्टेंस अलाउंस मिल रहा है, ये सब डिडक्ट नहीं होना चाहिए, डिडक्शन नॉट टू बी मेड। आपका जो जीपीएफ जनरल, जो ओल्ड पेंशन में जीपीएफ सब्सक्रिप्शन है ना, जिनका ओल्ड पेंशन है बिफोर जनवरी 1, 2004, याद रखिए, जिनका सब ओल्ड पेंशन है उनका जीपीएफ कंट्रीब्यूशन है, तो जीपीएफ कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई कोर्ट अटैचमेंट से उसका जो अमाउंट है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। और रिकवरी ऑफ लॉस टू गवर्नमेंट, सपोज जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर है उसके वजह से गवर्नमेंट को लॉस हुआ है, वो भी अभी रिकवरी नहीं होगा। तो ये तीनों रिकवरी नहीं होगा, डिडक्शन नॉट टू बी मेड। तो ये देख लीजिए, फास्ट जो एक्सट्रीम लेफ्ट में है डिडक्ट होगा, कंपल्सरी डिडक्ट होगा सब्सिस्टेंस अलाउंस से। मिडिल वाला जो है वो ऑप्शन है, ऑप्शनल है, और लास्ट वाला जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आता है। प्रमोशन को चलेंगे, प्रमोशन ड्यूरिंग द सस्पेंशन। प्रमोशन जैसे डीपीसी, यहां पर द ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शैल बी कंसीडर्ड बाय द डीपीसी अलोंग विथ अदर्स एज यूजुअल। ऐसा नहीं कि आप अभी आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, आप अभी सस्पेंडेड हो, तो आपका बारी है कि आपका प्रमोशन इट मींस होना चाहिए, जो अभी 10 इयर्स हो गया आपका और आपका प्रमोशन होगा, वो रोका नहीं जाएगा। प्रमोशन के ऊपर डिसीजन होगा मगर वो सील्ड कवर में रहेगा, अभी उसके ऊपर एक्ट नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड डीपीसी कंसीडर द केस रिलेटेड टू द प्रमोशन, ओके, ऑफ चार्ज ऑफिसर। तो मगर जो भी डिसीजन होगा वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा। जब डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगा और उसका जो कॉन्सिक्वेंस को देखकर वो सील्ड कवर को ओपन किया जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, इफ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग ऑफ डीपीसी, सपोज डीपीसी मीटिंग खत्म हो चुका है, डीपीसी मीटिंग हो चुका है मगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है। यहां पर देखिए, इफ एन ऑफिसर इज सस्पेंडेड सब्सिक्वेंट टू द मीटिंग ऑफ द डीपीसी, डीपीसी जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी मीटिंग हो चुका है मगर आपका प्रमोशन अभी नहीं हुआ है, बट बिफोर ही इज एक्चुअली प्रमोटेड, तो इस केस में क्या होगा ना, जो भी डिसीजन लिया गया है वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा, अभी कुछ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीपीसी मीटिंग हो चुका है मगर अभी किसको प्रमोशन दिया जाएगा किसको प्रमोशन वो डिक्लेयर नहीं किया गया है, और उसी में सपोज कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसका सस्पेंशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो वो जो भी डिसीजन उसके ऊपर लिया गया है डीपीसी मीटिंग में वो सील्ड कवर के अंदर रहेगा पूरा। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन। बाकी चलेंगे,
अथॉरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इशू ऑर्डर रिगार्डिंग डीम्ड सस्पेंशन। डीम्ड सस्पेंशन हम मान लेते हैं, सपोज एक एग्जांपल में देता हूं, जैसे कोई क्रिमिनल केस में आपको डिटेन कर दिया गया और वो 48 आवर्स क्रॉस हो गया, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपको सस्पेंड कर दिया गया। तो उसमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी, जो डीम्ड सस्पेंशन जो ऑर्डर, अपॉइंटिंग अथॉरिटी का पावर है। और ये आप देख लीजिए रूल 10 तो सस्पेंशन रिलेटेड है ना, आप क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील का रूल 10 देखिए, तो ये रूल 10 सबसेक्शन 2, ठीक है, इसको मेंशन किया गया है कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर देता है, ठीक है। यदि आपका डिटेंशन मोर देन 48 आवर्स हो जाता है, मान लिया जाएगा कि वो सस्पेंडेड हो गया, ठीक है। और टाइमलाइन फॉर कम्युनिकेटिंग द रीजंस फॉर सस्पेंशन, सपोज आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिला मगर उसमें रीजन नहीं दिया गया है, you receive the suspension order but in suspension order it is not mention the reason of the suspension। तो यदि रीजन नहीं है तो जिस डेट में आपको सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उसका 3 मंथ्स के अंदर आपको रीजन दे दिया जाएगा कि इसी रीजन की वजह से आपको सस्पेंड कर दिया गया, तो शुड बी कम्युनिकेटेड विद इन 3 मंथ्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया था कि जो अपार है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, आप जानते हो उसका रिपोर्टिंग होता है और जो रिव्यूइंग ऑफिसर है उसको रिव्यू करते हैं, नहीं? तो वो क्या किया जाएगा, जैसे रिव्यू टाइम में कि रिपोर्टिंग टाइम में जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है और रिव्यूइंग ऑफिसर है उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उसमें क्या रूल है? तो यहां पर है कि द रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर इज अंडर सस्पेंशन when the confidential report has become due to be written or reviewed। अभी टाइम है कि रिटन और रिव्यू किया जाएगा और इसी समय रिपोर्टिंग ऑफिसर और रिव्यूइंग ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो उस केस में क्या होगा, जिस डेट में उनका सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट होगा उसका 2 मंथ्स के अंदर वो ये रिपोर्ट और रिव्यू का रिपोर्ट वो सबमिट करेंगे, ठीक है। यदि ड्यू है, यदि रिपोर्ट ड्यू है, जैसे मैं बताया था ये ड्यू रिलेटेड में बता रहा हूं, जैसे ये डेडलाइन था सितंबर 15 के अंदर पूरा रिपोर्ट रिव्यू हो जाना चाहिए, मगर ये क्रॉस हो चुका है, डेडलाइन जा चुका है और अभी ड्यू है, तो अभी जो रिपोर्ट करना था कि जो जिसको रिव्यू करना था वो सस्पेंडेड हो गए, तो क्या होगा, उसको टाइम दे दिया जाएगा कि जिस डेट में आपका सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट हुआ है उसका 1 मंथ के अंदर इसको खत्म करो। तो इसीलिए ये और आइदर फर्स्ट वन और सेकेंड वन व्हिच एवर इज लेटर, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि जो रिपोर्टिंग टाइम और रिव्यूइंग टाइम में सस्पेंशन होता है तो 2 मंथ्स के अंदर आपको खत्म करना है। यदि वो ड्यू है, ऑलरेडी रिपोर्ट ड्यू है, वो डेडलाइन है, डेडलाइन के अंदर खत्म करना था मगर अभी वो डेडलाइन क्रॉस हो चुका है मगर वो खत्म नहीं हुआ है, तो रिव्यूइंग ऑफिसर रिपोर्टिंग ऑफिसर का को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है। तो इस केस में क्या होगा ना, जिस डेट में उनको सस्पेंडेड किया गया उसी डेट से 1 मंथ के अंदर उनको बोल दिया जाएगा कि इसको खत्म करो, आप आपका जो रिपोर्टिंग है और आपका जो रिव्यूइंग है उसको खत्म करो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे। और ये जो डेडलाइन था 2 मंथ्स 1 मंथ्स, उसका बियॉन्ड में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा रिपोर्ट और रिव्यू के लिए। और बाकी है यदि मेजर पार्ट आप सस्पेंशन पीरियड में रह गए, कोई ऑफिसर को आप सुपरवाइज करने में मेजर पार्ट आप सस्पेंशन पीरियड में रह गए, तो आप रिपोर्टिंग ऑफिसर हो, आप मगर आप रिपोर्ट नहीं लिख सकते। क्या आप रिव्यूइंग ऑफिसर हो, आप रिव्यू नहीं कर सकते, क्योंकि जो मेजर पार्ट है, जो ऑब्जर्वेशन का मेजर पार्ट है, इस समय आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा था, आप सस्पेंडेड थे, तो मेजर पार्ट आप सस्पेंडेड हो, मेजर पार्ट आप सुपरवाइज नहीं किया और मेजर पार्ट एक्चुअली आप इट मींस आपका सस्पेंशन पीरियड चला, तो उसमें चाहे आप रिपोर्टिंग ऑफिसर की रिव्यूइंग ऑफिसर, मगर आप रिपोर्ट रिव्यू नहीं कर सकते। ये पॉइंट यहां पर दे दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, एलटीसी के बारे में बता रहा हूं। एलटीसी बेसिकली कोई ना कोई लीव में मिलता है, आप लीव लेंगे तो एलटीसी मिलेगा, मगर आपको सस्पेंशन पीरियड में कोई भी लीव आप नहीं ले सकते, चाहे ना सीएल ले सकते ना ईएल ले सकते, कोई लीव नहीं ले सकते।
यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लीव, जो फंडामेंटल रूल 55 बोल रहा है, तो आपको लीव नहीं मिलेगा तो आप एलटीसी कैसे लेंगे? मगर फैमिली मेंबर्स को एलटीसी मिलेगा, मगर चार्ज ऑफिसर को एलटीसी नहीं मिलेगा। इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसको लीव अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। मगर आपका फैमिली मेंबर्स जो है ओके, उनको एलटीसी वो एज यूजुअल बोलेंगे। अच्छा, यहां पर दे दिया, देखिए फंडामेंटल रूल 55, आगे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, जो मेरा जो पार्ट 8 आएगा। तो अभी तो ये 52, 53 फंडामेंटल रूल 52, 53 डिस्कस हो रहा है। तो FR 55 ये बोला है कि आपको कोई भी लीव आपको सैंक्शन नहीं किया जाएगा सस्पेंशन पीरियड में। सस्पेंशन पीरियड में कोई भी लीव सैंक्शन नहीं किया जाएगा, ठीक है। लीव मे नॉट बी ग्रांटेड टू गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन, राइट। चलो नेक्स्ट पार्ट को चलेंगे, हेडक्वार्टर्स के बारे में देखेंगे। बेसिकली आपका हेडक्वार्टर जो लास्ट प्लेस था वही हेडक्वार्टर रहेगा। तो आपको जो सस्पेंशन ऑर्डर मिलेगा उसमें क्लियरली मेंशन होगा हेडक्वार्टर, देखो ऑर्डर प्लेसिंग एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन शुड क्लियरली इंडिकेट व्हाट हिज हेडक्वार्टर शुड बी। आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि आपका हेडक्वार्टर क्या रहेगा। तो बेसिकली आपका जो जहां पर आप कुछ ऑफेंस किया और उसी के ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है, तो वही प्लेस आपका हेडक्वार्टर रहेगा। और हेडक्वार्टर का चेंज का बात, सपोज अभी चार्ज ऑफिसर रिक्वेस्ट किया कि मेरा हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया जाए, और इस केस में क्या होगा, यहां पर देखिए, however where an individual under suspension request for a change of headquarters, so there is no objection to a competent authority changing the headquarters if it is satisfied that, कि यदि competent authority उसको एनालाइज करेगा, सपोज चार्ज ऑफिसर अभी अप्रोच करेगा कि मेरा हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया जाए, और उसमें उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको एनालाइज करेगा, सर्कमस्टांस देखेगा, और वो अल्टीमेटली डिटेक्ट करेगा कि गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, जैसे टीए की अदर कॉम्प्लिकेशंस में गवर्नमेंट को कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं है यदि आप उसका हेडक्वार्टर को चेंज हो रहा है। ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो ट्रैवलिंग अलाउंस है कि एनी अदर में गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बर्डन नहीं है गवर्नमेंट के लिए, और बाकी वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा, सर्कमस्टेंस को एनालाइज करेगा कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि कोई जो डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रहा है उसका कोई उसमें कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं होगा, तो उस केस में हेडक्वार्टर को चेंज कर दिया जाए। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सिचुएशन को एनालाइज करेगा और बेसिकली सर्कमस्टांस देखेगा कि हेडक्वार्टर चेंज होने से जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें कोई एडवर्स इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, और बाकी हेडक्वार्टर चेंज होने से भी जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है उसमें कोई बर्डन नहीं आएगा, कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस की कोई एनी अदर एक्सपेंडिचर उसमें बेसिकली कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर नहीं होगा, ठीक है। तो इट मींस हेडक्वार्टर चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, अच्छा फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, इसमें दे दिया गया सस्पेंशन टाइम में, सपोज चाहे आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है कि आप डेपुटेशन में जाना चाहते हो, आपका लेटर एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाएगा डेपुटेशन के, ये सब कुछ नहीं होगा ना, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम कि आपका डेपुटेशन, ये कोई भी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, सस्पेंशन पीरियड में, कि ट्रांसफर कोई भी केस में आपका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिलेटेड टू द नेक्स्ट वन रेजिग्नेशन का बात आ जाता है, एक्सेप्टेंस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ए सस्पेंडेड ऑफिसर। देखिए रेजिग्नेशन का बात जब आ जाएगा, आप सपोज आप रिजाइन करना चाहते हो, अभी डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रहा है, आप रिजाइन करना चाहते हो, तो फर्स्ट वन पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट वुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पर पब्लिक इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि ठीक है उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग चल रहा है और पब्लिक इंटरेस्ट में ये ठीक भी होगा, उसको रिजाइन देने से ठीक होगा, तो हो सकता है यदि पब्लिक इंटरेस्ट बोल रहा है नहीं उसको रिजाइन नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। तो फर्स्ट वन पॉइंट पब्लिक इंटरेस्ट में आप देख लीजिए। नेक्स्ट वन, यदि सेकेंड वन देखिए, नॉर्मली यदि बेसिकली जो केस है, जो भी चार्ज आपके ऊपर लगा है वो थोड़ा ग्रेव है, उसका इंटेंसिटी थोड़ा हाई है, उस केस में आपको रेजिग्नेशन नहीं दिया जाएगा। नॉर्मली एन ऑफिसर्स आर प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन ओनली इन केसेस ऑफ ग्रेव डेलिंक्वेंसी, इट विल नॉट बी करेक्ट टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन फ्रॉम एन ऑफिसर अंडर सस्पेंशन।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके ऊपर जो चार्ज लगा है वो चार्ज का इंटेंसिटी बहुत हाई है तो उस केस में आपको आप रेजिग्नेशन आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो उसमें कुछ कंडीशंस देखिए, लास्ट पॉइंट इसी को देखिए, इसमें दे दिया गया कि डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, कि वेयर द एविडेंस अगेंस्ट द ऑफिसर इज नॉट स्ट्रांग इनफ, जो भी आपके अगेंस्ट में एविडेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। और यदि आपके डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो गवर्नमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का बर्डन है, तो उस केस में आपका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। जो जो मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्वमेंट है वो इतना नहीं है, डज नॉट इन्वॉल्व मोरल टर्पिट्यूड, कि आपके अगेंस्ट में जो एविडेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, कि ये देखा जा रहा है कि अभी तो ये डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग प्रोट्रैक्टेड होगा, वो थोड़ा लॉन्ग होगा, उसमें गवर्नमेंट के लिए थोड़ा क्या होगा, एक्सपेंडिचर का बर्डन होगा, तो इसके वजह से उसका रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर दिया जाए, अच्छा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस को थोड़ा आप देखिए, ठीक है, क्लियर। अच्छा, सस्पेंशन पीरियड में जो रिटायरमेंट ड्यूरिंग सस्पेंशन, अच्छा आपका सस्पेंशन पीरियड चल रहा है और आपको सुपरएनुएशन रिटायरमेंट मिल गया, तो उस केस में बेसिकली प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। और बाकी आप जानते हो जो सस्पेंशन पीरियड, अभी तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो सस्पेंशन पीरियड तो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, क्वालिफाइंग सर्विस मींस जो ड्यूटी पीरियड है उसमें तो इंक्लूड नहीं होगा। तो जितना आपका क्वालिफाइंग सर्विस होगा उतना ही आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, वही दे दिया। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर्स अंडर सस्पेंशन इज एंटाइटल्ड टू प्रोविजनल पेंशन इक्वल टू द मैक्सिमम पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस अप टू द डेट इमीडिएटली प्रेसीडिंग द डेट ऑन व्हिच ही वाज प्लेस्ड अंडर सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन पीरियड जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। तो सस्पेंशन पीरियड तक जितना आपका क्वालिफाइंग सर्विस है उसके हिसाब से आपको प्रोविजनल पेंशन मिलेगा, और ये क्लियरली डिफाइन किया गया है रूल 8। अब देखिए जो सीसीएस पेंशन रूल्स है 2021 का रूल 8 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन ए में क्लियरली मेंशन किया गया है। रूल को थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्वालिफाइंग सर्विस दे है, काउंटिंग ऑफ पीरियड्स ऑफ सस्पेंशन एज क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, यहां पर दिया गया है। सपोज यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सपोज आपको एक्सोनरेट कर दिया गया कि फुली जो चार्ज लगा था वो ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ और उसमें डिक्लेयर किया गया कि जो चार्ज लगा है वो चार्ज बेसलेस है, तो आपको फुली एक्सोनरेट कर दिया गया, जो भी चार्ज लगाया गया था उससे आपको माफ कर दिया गया, और एक माइनर पेनल्टी लगा, ठीक है। और जो सस्पेंशन पीरियड था वो होली अनजस्टिफाइड था, तो उस केस में बेसिकली आपका जो सस्पेंशन पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो एक्सोनरेटेड हो गया, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज बेसलेस हो गया, और बाकी माइनर पेनल्टी लगा। माइनर पेनल्टी लगने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो सस्पेंशन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। और बाकी ये थर्ड पॉइंट देखिए, जो सस्पेंशन है वो अनजस्टिफाइड था, तो इस केस में आपका जो सस्पेंशन पीरियड है उसको क्वालिफाइंग सर्विस मान लिया जाएगा। नेक्स्ट है कि competent authority actually declare the period of suspension shall not count unless the authority competent to pass orders, तो competent authority वो ऑर्डर पास करेगा कि आपका जो सस्पेंशन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा कि नहीं, तो वो competent authority डिक्लेयर करेगा, competent authority का ऑर्डर से ही पता चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, इन ऑल केसेस ऑफ सस्पेंशन द competent authority shall pass an order, तो बेसिकली एवरी सस्पेंशन मैटर में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करेगा कि आपका सस्पेंशन पीरियड वो क्वालिफाइंग सर्विस की ड्यूटी के आकार में माना जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये रूल 23 बेसिकली क्वालिफाइंग सर्विस रिलेटेड है, सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, ठीक है। तो क्वालिफाइंग सर्विस ही हम जब जो ओल्ड पेंशन में जो क्वालिफाइंग सर्विस को काउंट किया जाता है, आपका कितना क्वालिफाइंग उसके हिसाब से एक्चुअली पेंशन फिक्स होता है। जो नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है वो एक्चुअली उस पीरियड को पेंशन के लिए काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये सीसीएस पेंशन रूल 2021 रूल 23 इसको डिस्कस किया गया, रूल को थोड़ा याद रखिए, ठीक है। चार्जशीट रिलेटेड मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विंग ऑफ चार्जशीट, इस रिलेटेड में थोड़ा हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, सस्पेंशन ऑर्डर शुड नॉर्मली इंडिकेट द ग्राउंड्स फॉर सस्पेंशन। आप जानते हो सस्पेंशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन होगा कि क्या ग्राउंड है, आपको क्यों सस्पेंड किया गया, रीजन दे दिया जाएगा।
और नेक्स्ट वन, सपोज वेयर द सस्पेंशन इज ऑन ग्राउंड्स ऑफ कॉन्टेम्पलेटेड। कॉन्टेम्पलेटेड मीन्स क्या है कि अभी प्राइमा फेसी एविडेंस है, कंसर्न एम्प्लॉय के अगेंस्ट में प्राइमा फेसी एविडेंस है, और अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, अभी नहीं हुआ है, होगा, 100% होगा, क्योंकि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में डिटेक्ट हुआ कि जो कंसर्न एम्प्लॉय है उसका इन्वॉल्वमेंट है, उसके ऊपर जो चार्ज लगाया गया है उसमें ट्रूथ है, ठीक है। तो उस केस में चार्जशीट 3 मंथ्स के अंदर सर्व होगा। ओके, कंटेम्पलेटेड प्रोसीडिंग्स मींस यही है कि डेफिनेटली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स विल बी इनिशिएटेड शॉर्टली। तो उस केस में चार्जशीट शुड बी सर्व्ड अपन द गवर्नमेंट सर्वेंट विद इन 3 मंथ्स, ठीक है। और यदि आपको चार्जशीट 3 मंथ्स के अंदर नहीं दिया गया, आप अभी सस्पेंडेड हो और चार्जशीट आपको नहीं दिया गया 3 मंथ्स के अंदर, तो reasons for suspension should be communicated to the government servant immediately on expiry of 3 months from the date of suspension। अभी सस्पेंशन ऑर्डर इफेक्ट हो गया, 3 मंथ्स के अंदर आपको रीजन नहीं दिया गया है कि किस वजह से आपको सस्पेंड किया गया है, तो इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स आपको रीजन दे दिया जाएगा कि इसी रीजन के वजह से आपको सस्पेंड किया गया, ठीक है। तो ये जो 2-3 पॉइंट को अच्छे से देख लीजिए, राइट। चलो रिव्यू को देखेंगे, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। तो बेसिकली जो अथॉरिटी सस्पेंड करता है और डीम्ड सस्पेंशन का ऑर्डर निकालता है, बेसिकली जो कॉम्पिटेंट, जैसे अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है, और सपोज द अथॉरिटी हु इज सुपीरियर देन द competent authority, who is superior than the disciplinary authority, who is superior than the appointing authority, उनके पास पावर है। तो जो ऑफिसर एक्चुअली के पास पावर है वो आपका सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, ठीक है। तो अथॉरिटी रिलेटेड मैटर है, द अथॉरिटी व्हिच मेड और इज डीम्ड टू हैव मेड द ऑर्डर बाय एनी अथॉरिटी टू व्हिच दैट अथॉरिटी सबऑर्डिनेट। तो बेसिकली आपको मेरा एक वीडियो था, मैं बोला था कि हु आर द अथॉरिटीज actually to give the suspension order, basically appointing authority, disciplinary authority, authority who is superior than the appointing authority and disciplinary authority, ये सब है, उनके पास पावर है, ठीक है, उनके पास ही पावर है, वो सस्पेंशन को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिवोक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहां पर बेसिकली आपका 90 डेज के अंदर, याद रखिए, सस्पेंशन पीरियड का जो रिव्यू होगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज एक रिव्यू कमिटी कंस्टिट्यूट किया जाएगा, वो आपका सस्पेंशन को रिव्यू करेगा कि उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा क्या ना उसको रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो कमिटी है वो एक्चुअली ऑर्डर देगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मगर इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है, जो मॉडिफिकेशन होता है बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, और इट मस्ट बी मॉडिफाइड बाय द रिव्यू कमिटी, ओके। एक रिव्यू कमिटी रहेगा, वो एक्चुअली आपका सस्पेंशन को हटा दिया जाएगा ना सस्पेंशन पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, वही डिसाइड करेंगे। मगर यहां पर जो लास्ट सेंटेंस देखिए, आपका सस्पेंशन पीरियड को जो एक्सटेंशन किया जाएगा, एक टाइम में कितना दिन एक्सटेंड किया जाएगा, 180 डेज। वन टाइम द सस्पेंशन पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय 180 डेज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है जस्ट बिफोर 90 डेज एक्चुअली सस्पेंशन पीरियड मस्ट बी रिव्यूड, ओके, एंड इट मस्ट बी रिव्यूड बाय द रिव्यू कमिटी, ओके, राइट। बाकी यहां पर देखेंगे, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। अच्छा, यदि रिव्यू नहीं किया गया बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, सपोज रिव्यू नहीं किया गया, तो ये मान लिया जाएगा कि आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया, तो वही दे दिया, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड टू हैव बीन मेड शैल नॉट बी वैलिड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 डेज अनलेस इट इज एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर ए फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज। तो 90 डेज ऐसे एक्सपायरी हो गया मगर रिव्यू नहीं किया गया, तो इसका मीनिंग है आपका सस्पेंशन रिवोक हो गया। और यहां पर जो डीम्ड सस्पेंशन है, जैसे डीम्ड सस्पेंशन में बताया था, डीम्ड सस्पेंशन क्या है, जैसे कोई कंसर्न एम्प्लॉय को डिटेन कर दिया गया, क्रिमिनल केस में डिटेन कर दिया गया मोर देन 48 आवर्स, तो उसको ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि
सस्पेंडेड है, मगर उसका जो 90 डेज काउंट होगा, ये जो रिव्यू किया जाएगा उसके लिए दो ऑप्शन है। इन सच केस कैसे हम 90 डेज लेंगे, क्योंकि हमको बिफोर 90 डेज एक्चुअली इट मस्ट बी रिव्यूड, सस्पेंशन पीरियड कैन बी रिव्यूड बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज, नहीं कि? तो उनके लिए जो डीम्ड सस्पेंशन है, जो एक्चुअली मोर देन 48 आवर्स वो डिटेन हो गए, हम तो मान लिए कि उनको सस्पेंशन मान लिए, तो उस केस में 90 डेज कैसे काउंट होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जिस दिन में आपको रिलीज किया जाएगा, द गवर्नमेंट सर्वेंट डिटेन्ड इज इन कस्टडी इज रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, ठीक है। और बाकी सेकेंड वन है कौन सा डेट में आप इन्फॉर्म किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मैं कस्टडी से मेरा रिलीज हो गया, तो उसमें जो लेटर होगा जो बाद में होगा, उसी डेट से हम 90 डेज एक्चुअली हम इट मींस काउंट करेंगे कि जस्ट बिफोर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज एक्चुअली द सस्पेंशन कैन बी रिव्यूड। तो यहां पर जो 90 डेज का जो कंप्यूटेशन होगा वो डिफरेंट होगा कि फर्स्ट वन ऑप्शन है जिस डेट में कस्टडी से रिलीज होगा, और एक है कि जिस डेट में वो इन्फॉर्म किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कि मेरा कस्टडी से रिलीज हो गया, तो उसमें जो बाद में होगा व्हिच एवर इज लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे याद रखना है, तो 90 डेज पीरियड शैल बी काउंटेड फ्रॉम ये फर्स्ट वन है और ये सेकेंड वन है। फर्स्ट वन किस डेट में आपको रिलीज किया गया, सेकेंड वन क्या है ना, आप जो इन्फॉर्म किया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो आइदर वन और टू व्हिच एवर इज लेटर, ठीक है। बाकी इंपोर्टेंट नोट, वेयर नो चार्जशीट इज इशूड अंडर दीज रूल्स, टोटल पीरियड अंडर सस्पेंशन और डीम्ड, अच्छा आपको चार्जशीट इशू नहीं हुआ है, चार्जशीट इशू नहीं हुआ तो आपका जो सस्पेंशन पीरियड प्लस एक्सटेंडेड सस्पेंशन पीरियड कितना दिन तक होगा आप समझ रहे हो। अभी चार्जशीट इशू देखो, वेयर ये बहुत वेयर नो चार्जशीट इज इशूड, तो कितना दिन के बाद ऑटोमेटिकली उसको पास हो जाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिस्कार्ड हो जाएगा कि मान लिया जाएगा कि आपका जो आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो बेसलेस है, आप एक्सोनरेट हो जाएंगे। तो उसमें दे दिया गया है यदि आपके ऊपर इन टर्म्स ऑफ, देखिए कंडीशन, इन टर्म्स ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम इज कॉन्टेम्पलेटेड और इज पेंडिंग, यदि आपके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, कि आपके ऊपर अभी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कॉन्टेम्पलेटेड है कि हाँ एविडेंस है और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग इनिशिएट होगा, और इसमें कोई चार्जशीट नहीं दिया गया, मैक्सिमम 270 डेज, चाहे आपका जो सस्पेंशन पीरियड प्लस एक्सटेंडेड सस्पेंशन पीरियड, ये मैक्सिमम 270, इससे ज्यादा नहीं होगा, शैल नॉट एक्सीड, इससे 270 डेज से ज्यादा हो जाएगा, इसी पॉइंट में देखिए जो लास्ट सेंटेंस है, तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा है उससे आप एक्सोनरेट हो गए, ओके। तो फर्स्ट केस ही है, अदर टू केस में 2 इयर्स है, जैसे 2 इयर्स क्या है, सेकेंड वन जो है ना, इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट अगेंस्ट प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये आपको लगा है, ही हैज एंगेज्ड हिमसेल्फ इन एक्टिविटीज प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसी केस में आपको सस्पेंड किया गया है। यदि ये आपको चार्जशीट इशू नहीं हुआ तो ये 2 इयर्स से ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि आपके ऊपर जो चार्ज लगा था वो बेसलेस है। और सिमिलरली डीम्ड सस्पेंशन रिलेटेड में, ये जो डीम्ड सस्पेंशन रिलेटेड में भी 2 इयर्स होगा, यदि आपको जो डीम्ड, जो हम मान लिए हैं कि वो डीम्ड सस्पेंशन था, मान लिए थे कोई क्रिमिनल केस में आपको डिटेन कर दिया गया मोर देन 48 आवर्स, ठीक है, तो इस रिलेटेड मैटर में आपको सो कॉज नोटिस इशू नहीं हुआ और 2 इयर्स क्रॉस हो गया, तो इसमें हम मान लेंगे कि जो भी चार्ज लगा था वो बेसलेस है, ठीक है। तो 270 डेज, अदर केस में 2 इयर्स आपको याद रखना है। डाउरी केस में सस्पेंशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स इन्वॉल्व्ड इन केसेस ऑफ डाउरी डेथ्स, डाउरी डेथ में आप देखिए अंडर सेक्शन 304B ऑफ द आईपीसी, जो इंडियन पेनल कोड है, he shall be placed under suspension in the following circumstances by the competent authority by invoking the provisions of sub rule 1 of the rule 10 of the CCA rules 1965। तो यदि डाउरी डेथ होता है और आपके ऊपर केस रजिस्टर्ड पुलिस करता है तो आपको इमीडिएटली सस्पेंशन कर दिया जाएगा, वहां पर 48 आवर्स हम डिटेंशन को नहीं देखेंगे। यहां पर देख लीजिए 2 कंडीशन से, यहां पर फर्स्ट वन डिटेंशन को नहीं दिया जाएगा, जैसे डिटेंशन पीरियड है कोई क्रिमिनल केस में आपको डिटेन कर दिया गया कस्टडी में, वो एंड इट क्रॉस 48 आवर्स,
यदि 48 आवर से ज्यादा हो गया तो हम मान लेंगे कि आप सस्पेंडेड हो गए। मगर इस केस में, डाउरी डेथ केस में, यदि वंस पुलिस इट मींस आपके ऊपर इट मींस केस लॉन्च किया और आपको यहां पर इमीडिएटली ये देखिए, इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अरेस्टेड, आपको ओनली अरेस्ट कर दिया गया, यहां पर डिटेंशन का बात नहीं आएगा डाउरी डेथ में। यहां पर ओनली अरेस्ट कर दिया गया और पुलिस चार्ज लगा दिया कि डाउरी डेथ में आपको अरेस्ट किया गया, तो इमीडिएटली आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, वहां पर डिटेंशन को नहीं देखा जाएगा 48 आवर्स। सेकंड ये है कि आपके ऊपर एनफ एविडेंस है, जैसे रिपोर्ट चला गया, रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को पेश हो गया, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को पेश हो गया, और प्राइमा फेसी एविडेंस है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है डाउरी डेथ में, तो इस केस में आपको सस्पेंशन मान लिया जाएगा। ठीक है दोनों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउरी डेथ केस में कोई डिटेंशन जो पीरियड जो 48 आवर्स वो नहीं रहेगा वो लिमिट, और बाकी पुलिस लॉन्च किया, आप अरेस्ट नहीं हुए। सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये जो सेकंड ऑप्शन में आपको अरेस्ट नहीं किया गया, मगर पुलिस ने क्या किया, आपके अगेंस्ट में इट मींस केस लॉन्च किया और वो रिपोर्ट चला गया ऑनरेबल मजिस्ट्रेट के पास, और प्राइमा फेसी एविडेंस है कि आपका इन्वॉल्वमेंट है, उस केस में आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही था। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन में दे दिया, एमसीक्यूज दिया, और रिलेटेड टू द सस्पेंशन बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दिया। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा फंडामेंटल रूल 54-55, आगे में चलेंगे। तो आज इतना ही है। सो प्लीज माय फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, like my channel and share my channel so that you can get notification for my upcoming videos. Thank you and namaskar.